گندگی والی چیز سے صاف جگہ پہ جائیں گی تو وہ کیٹانو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے گھروں کے پھر کیا ہوگا، میڈیکل بل کے خرچے بڑھ جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے نا ہم بیسک کی صفائی کر کے رکھیں، اور اس کو ایک عادت میں شمار کیا جائے، وہ زیادہ امپورٹنٹ رہے گا اس طریقے سے۔ اور ہمیں آپ لوگوں نے بلایا یہاں پہ، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے اس کاریہ میں آ سکیں، تو مجھے امید رہے گی کہ آپ بھی آج یہاں پہ یہی ہی آپ ایک پرن لوگے کہ آپ جہاں بھی رہیں گے آپ صفائی رکھیں گے۔ We have to minimize the pollution. ہمیں پولوشن کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ کم کیا then we can survive. کم نہیں کیا then be ready for the ultimate result. بیماری ہو، اس پاک رہنے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اس پاکی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اگر انسان ناپاک ہوگا تو یہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے فرائض بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں کہ کپڑوں کا پاک ہونا، انسان کے جسم کا پاک ہونا، اسی طرح جگہ کا پاک ہونا۔ جب یہ پاک سب چیزیں پاک ہوں گی تو اس کے بعد انسان ان جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اس کو قرآن حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جب انسان یہ نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس کو قرآن دیتا ہے حکم کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ سب سے پہلے چہرہ دو، بازو دو، اسی طرح مسح کرو۔ جب انسان ان چیزوں کے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے انسان میں وون بیت کہ برو سائیں ماج بن نیرا آئی افسوس کر مشکوریات یہ تو جم شیخ بسا شیخ کسی پر آب آنے یعنی میں کھاندر داس آگ شیخ شب لیکن اتنا کسا شوق سے تم زیانا آگ جو شفایا پانی ہوس آج سے میں کل کن آج سے کل اچھا نوٹ کسا ناگوات۔ سب سے پہلے میں NKYC پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ڈائریکٹر مسٹر اعجاز احمد بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک شاندار سیٹ اپ اٹھایا ہے، ایک شاندار کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، جس کام کی شدت ضرورت آج ہماری سوسائٹی میں ہے۔ ویسے یہ اقدام سے دفعہ پر دوا نہیں آئے، ہمارے مطالبات تھے، کچھ تجاویز تھے، کیونکہ میں بذات خود ایک سینئر بیوروکریٹ رہا ہوں، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والا بندہ ہوں، ایک گناہگار ہوں، تعلیم کم ہے، لیکن میں ایک ڈپلومہ ہولڈر بھی ہوں جو MSc فارسٹی کے برابر مانی جاتی ہے۔ اب ہم ان کا زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ I would like to convey my message to BMO especially so far as this اب یہ لوگ انگریزی نہیں سمجھتے ہیں، سب پولیشن کا مسئلہ ہے، یہ ہم نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی ماری۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایسے پہلے بھی ہماری مائیں بہنیں بچے جنتی تھی، کہیں کوئی پولیشن نہیں ہوتا تھا، ڈائپرز کا استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کتنی صاف ستھری عورتیں تھیں، وہ دین والی تھی۔ آج کی ہماری مائیں بہنیں ایک سائڈ سے دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، دوسرے ہاتھ میں وہ موبائل ہوتا ہے۔ ہمارے وقت کی مائیں بہنیں آج تو کرسی اور درود پڑھتی تھی، وہ جو پیدا ہوئے ان میں ہم بھی ہیں، وہ ولی بن گئے۔ آج جو بچے پلتے ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، تبھی ہم یہاں تک پہنچے ان کی دعاؤں سے۔ آج کل مائیں روٹی پکاتی ہیں تو موبائل، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، وہ ویر اپن چور ڈاکو بدماش نہیں بنے گا کہ ولی بنے گا۔ تو آج کے دور میں in the current era اس کی اشد ضرورت ہے۔ میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے یوٹیوب پر ان کے پروگرامز دیکھتا رہا، انہوں نے وہ لوگ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں
जो आइसोलेटेड लोग हैं उनको दोबारा रेस्टोर करने के लिए, उनको दोबारा जिंदगी के डगर पर लाने के लिए ये अनथक कोशिश किए जा रहे हैं। एजाज साहब को और उसकी टीम को मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को ये आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आज का प्रोग्राम पोल्यूशन को लेकर है। एक बात मैं आप लोगों के साथ वसूख से शेयर करना चाहूंगा कि एजाज साहब ने आज ये प्रोग्राम यहां पर इनिशिएट किया। आप यकीन करें या ना करें, बिफोर गॉड एंड मैन, अल्लाह की कसम सच कहता हूं कि हर महीने में 2 बार, क्योंकि बिकॉज आई एम ए टीचर और मेरी पोस्टिंग जो है वो हाई स्कूल, किसी एक हाई स्कूल में है, वहां बड़े बच्चे ज़ेर तालीम है, तो मैं हर महीने में 2 बार, ऑलमोस्ट 2 बार 10-15 मिनट अपने क्लास के बच्चों को इसी पोल्यूशन को लेकर कुछ अहम पॉइंट्स जो है, जो आज के दौर में हमें चाहिए इस पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए डिस्कस करता हूं। क्योंकि वहां पर बड़ी बच्चियां ज़ेर तालीम है, हमारे घरों से निकलने वाला जितना भी गार्बेज है, जितनी भी गंदगी है, हमारी बच्चे जो है वो उस गंदगी को उठाकर, इसके बजाय कि वो डंपिंग पिट्स में उसको डंप करते या जमा करते, नालों में फेंक कर आते हैं। तो किसी ने कहा है कि, क्या खूब कहा है किसी ने, कि निप द इविल फ्रॉम इट्स बड, कि बुराई को अगर खत्म करना है तो उसको जड़ से खत्म करना है। कि आपने इस तरीके का एक प्रोग्राम शुरू किया है अपने ही लेवल पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देना चाहती हूँ दर्दपुरा गांव को कि उन्होंने इतनी अच्छी एक पहल शुरू की है, क्लीननेस ड्राइव, जिसके अंदर वो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए मर्द ही नहीं, औरतों को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। बहुत खुशी हुई, वरना मैं बहुत बार यहाँ पे देखती थी कि ज्यादा से ज्यादा मेल ही होते थे, फीमेल पार्टिसिपेशन कम थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने दोनों जेंडर को इसमें लाया है। देखिए, क्लीनिनेस जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आप जहां भी जाएं, आप यहाँ रह रहे हैं या किसी और शहर में भी चले जाएंगे, तो हर जगह आपको सफाई रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अपना ही रहता है। हमारे हिंदुओं में बोला जाता है कि जहां सफाई होती है वहां भगवान का निवास होता है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो वहीं जहां आप रहेंगे, अगर आप वहां साफ सफाई नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से कितने ज्यादा, और एक तो सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप अगर गंदगी में रह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपका वो उससे दिमागी जो विचार है वो भी ठीक नहीं रहेंगे। तो इसका टोटल मिला के आप बोलोगे आपके जो एक लाइफ होती है ना, उसके हर एक एस्पेक्ट को, आपके जीवन के हर एक स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है अगर आप सफाई नहीं रखते हैं। विलेज ऑफ विडोज, विलेज ऑफ ऑर्फेनेज, या दर्दपुरिस मज डेम रेडन डेम सर पकम लट आए 3 वरी ब्रो 1 करोड़ 20 लाख रपये तक खर्च कर, मगर वही सह फंक्शनल गसान कि पाइप 2 लाग तक। मेहरबानी कर नजर आ तकलीफ अपने तहसीलदार साहब की नोटिस में लाए, नायब तहसीलदार साहब की नोटिस में लाए। बाकी रही बात, हम इस सिलसिले में यहाँ आए हैं कि साफ सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। लेकिन अगर हम कहीं पर गंदे हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा हाथ है। हमको चाहिए अपने गिरबां को देखना कि हम किस जगह मेले हैं, ये मेल साफ करनी है और कोशिश करनी है इस मेल को साफ करने की। प्रोग्राम यहाँ पर इनकाद किया। बाकी एजाज साहब, मैं आपको कहता हूँ, आप इस इलाके के पूत नहीं बल्कि सपूत हो। अगर ऐसे प्रोग्राम करते रहोगे इलाके की शान भी बढ़ जाएगी और आपको भी बिल्कुल उन सपूतों की तरह पहचाना जाएगा जो यहाँ से कोच कर गए हैं, जिनमें सरफहरिस्त हैं एडवोकेट गुलाम नबी मीर साहब। जब कहीं पहुँचते हैं तो कहा जाता है यह दर्द पर नफर मगर यह नब सब में अलाको,
इस इलाके ने सर बहुत सबूत पैदा किए हैं। हमारे एक सबूत इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं शहर श्रीनगर से आगे इस्लामाबाद में, एसपी गुलाम हसन शेख साहब, जो इसी इलाके के सबूत हैं। बाखुदा दिल बड़ा खुश होता है अगर अपने को कहीं देखा जाए। अपने इस गांव, इस चमन को साफ करे, साफ शफाफ करके इसको एक बेहतरीन लुक दे जो इसकी बुनियादी लुक थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ टाइम की जो कमी पड़ गई, जिसकी वजह से हमारे जो बड़े साहिबान यहाँ ना पहुँच पाए, उस वजह से जो लोग थे वो निकल गए यहाँ से। तो हमें चाहिए कि हम जो अपने गांव में ये कूड़ा कचरा डायपर वगैरह डाल रहे हैं, इनके लिए हम सख्ती से पाबंदी करें, इस पे अपने आप को सुधारें। जब हर बच्चा अपनी लाइन में खड़ा होगा तो लाइन ठीक होगी अपनी हर तरफ से। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ गाँव वासियों से कि अपने घरों को, अपने चौराहियों को, अपने सड़कों को साफ सुथरा रखें, ताकि अगर कोई भी मेहमान दीगर गांवों से या कहीं शहरों से यहाँ आए तो वो हमें एक इंसान समझे, बाशूर और बाइज्जत लोग समझे, ऐसा न कि हमें बिहारी या कचरा वाला समझा जाए। तो बराए करम इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा बहुत सारा काम है यहाँ पे पेंडिंग है जो हमें करना है आगे आगे। इंशाल्लाह हम हर काम पे, हर मसले पे काम करेंगे। यहाँ बहुत सारे मसले हैं। मैं अपने बड़े साहिबान से भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ये जो विलेज ऑफ विडोज है, इसके साथ साथ बहुत सारे मसले हैं। यहाँ पानी का मसला है, यहाँ वाटर सप्लाई की कमी है, हर किसी चीज़ की कमी है। इन चीज़ों पे हम भी काम करेंगे और ये साहिबान भी हमारा साथ देते रहेंगे। मन में अपने डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, मन में अपने डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मरकब पाया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दर्द पूरा। मुझे लगता है कि इस इलाके ने पूरे काफी टाइम से काफी मुसीबत झेले हैं, मुझे लगता है। और वही जो आपने मुसीबत झेले हैं, आपने अपने मुश्किलात जो आपने देखे हैं, वो हम आपसे बांटने के लिए आए हैं। आप ये एनजीओ ने जहां आप इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, मैं इसकी तायीद करता हूं, तारीफ करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और जहां तक कहीं भी किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेप पर आपको हमारी मदद की जरूरत होगी, हम अवलीन फुर्सत में अपने आप को आपके लिए वक्फ करेंगे। कि एक डिपार्टमेंट यहाँ आज एब्सेंट है जिसकी ड्यूटी सबसे ज्यादा सफाई सुथराई में है, वो है हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट। वो यहाँ एब्सेंट है या आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ये बदकिस्मती की बात है कि वो यहाँ नहीं आए। बाकी हम अपनी तरफ से आपको, अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरा चौकीदार जो है या मैं हूँ, हम अपनी तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको आपके इस मामलात में हम आपके साथ हैं और दर्दपरा की आवाम भी आपके साथ है। हम आपका साथ देंगे इस मामले में। तहसीलदार साहब, ये जो दर्दपुरा हमारा है, यहाँ ये 5 हल्कों पे मुश्तमिल है। दर्दपुरा ABCDE, दर्दपुरा ABC जो है सर, वहाँ आज तक अभी 1947 से लेकर आज तक अभी भी कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है। JJM का एक प्रोजेक्ट सर पिछले साल यहाँ जो टेंडरिंग हुई, सैंक्शन हुआ, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक ठेकेदार ने पिछले लास्ट 6 महीने से उसका काम बंद है सर। बात कुछ लोगों ने जैसे यहाँ पे शिकायत की कि देर हुई, बात तो सही है, देर तो हुई, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये हर एक डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व रहता है। हर एक जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट कास्ट सर्टिफिकेट से लेके 50-60 सर्टिफिकेट हम बना के देते हैं और लोग उसका फ़ायदा भी होते हैं, बड़े बड़े पौधों में भी पहुँचते हैं उसकी वजह से। तो हमारा ये खिदमत हम हर एक तरह से करते हैं। फिर जो रेवेन्यू के मसाइल हैं अपने, और बड़े पेचीदा भी होते हैं, और लोगों का आजकल जो मतलब उसमें मतलब जानकार तो बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन खुदगर्ज भी बड़ी आ गई है, तो उसमें भी हमें बहुत परेशानी आती है ऐसे मसाइल को हल करने, जो पहले नहीं होता था। तो उसके बाद क्या है कि बाकी किसी डिपार्टमेंट का कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें उसमें हमारा रहता है। पानी का कहीं प्रॉब्लम हो, जैसे आप दर्दसून ऋषिगुण में अभी हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, गजरियाल में चल रहा है, तो उसमें लेकिन लोगों की भी बेसिकली मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा
कि इनका रोल भी थोड़ा मुस्बत होना चाहिए। प्रॉब्लम ये रहता है कि जो आदमी पानी लेता है वो दूसरे को पानी पीने नहीं देना चाहता है, तो इस वजह से हमें परेशानी आती है। तो वो एक ये मसाइल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा सफाई की, जैसे हमने सफाई सुथराई की बात करते हैं, तो जैसे मैडम ने भी अपने में कहा कि वो ऊपर वाले की बैठने की जगह सफाई की होती है, लेकिन हमारे इस्लाम में भी कहा कि ये आधा ईमान है। तो अगर हम साफ रहते हैं, सफाई रखते हैं, खुद को साफ रखते हैं, अपने कपड़े साफ रखते हैं, अपना आगे पीछे साफ माहौल साफ रखते हैं, तो मतलब हमारा ईमान कम से कम आधा तो है। अगर हम फिर नमाज कम, तो मतलब ये एक अहम चीज़ है जिस पे हम थोड़ा कम ये ध्यान देते हैं। बाकी जो माहौल की सफाई सुथराई में, जैसे गुलाम हसन साहब ने कहा कि सफाई सुथराई का जो है आरटी डिपार्टमेंट का रोल है, और वीडियो साहब को या तो आपने जैसे बुलाया होगा, मुझे पक्का यकीन है, तो वहाँ से कम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है ये सफाई सुथराई का। अब उन्होंने काम भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। जैसे वो बनाए हैं उन्होंने कुछ पिट्स बनाए हैं, उसके अलावा दूसरा भी जहाँ सेग्रीगेशन शेड्स भी बनाए हैं, तो लोगों को ठीक ठाक उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन शेड यहाँ बना है, गंदगी लोग दूसरी जगह डालते हैं, तो वो भी देखना है। और बड़ी लेवल पर हम जाएं तो देखिए, पहले पानी साफ होता था, हम नदी नालों का पानी पीते थे। उसकी वजह ये थी कि एक मतलब हमारे यहाँ प्लास्टिक नहीं था, ये जो बाकी चीज़ें नहीं थी, लोग मतलब सीधी सादी जिंदगी थी, उस वजह से भी सफाई थी। और दूसरा ये है कि आबादी भी बढ़ गई, जो कोई भी मुहिम जो स्टार्ट हो उसमें सबका, आवाम का भी रहता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी रहता है, प्राइवेट और एनजीओज का भी रोल रहता है, तो सब अपना अपना रोल अच्छी तरह से निभाएं, तो तभी हम सारी बिदात पे काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।